So write down the next topic. So next topic is here. Both means motoring and रीजेनरेटिव। अब हम लोग एक ही सर्किट में दोनों कॉन्फ़िगरेशन, दोनों ऑपरेशंस को करेंगे। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, मोटरिंग एंड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। तो इसके लिए क्या है कि चॉपर का जो सर्किट हम लोगों ने लास्ट में जो पढ़ा फर्स्ट और सेकंड केस के लिए, मोटरिंग और जनरेटिव, ठीक ना, उसको दोनों को कंबाइन करके जस्ट वी कंबाइन बोथ द सर्किट एंड टू क्वाड्रेंट चॉपर, वी जस्ट operation of see the circuit diagram. This is the source, this is the capacitor, one of the capacitor, this is one of the transistor, now again this is one of the transistor, now here one diode, again here one diode. Now connect motor, so connect the motor here, that is R, L, okay. So this is the circuit. Now this is plus minus V, this is the capacitor C, this is TR1, now this is TR2, this is T2, this is D1, this is IA, this is RA, LA, this is E, this is the total the circuit is, that is motor. This is what? This is motor. Now this is VA, this across, this is VA. So this is the this is the configuration, mean two quadrant chopper. This is the two quadrant chopper. See, this is the what? This is circuit is two quadrant chopper. Two quadrant chopper. Two quadrant chopper. So how this chopper will work? That we just operate when the both the operation means motoring and the regenerating. So in which time means which transistor and which diode will operate, and in which time interval the diode and the second transistor will operate. So see here I am drawing the configuration, that means waveform. Let's draw the waveform here. Just wait, waveform. See here. This is VA, this is V, this is 0. मैं बता रहा हूँ आप लोगों को डिटेल में। अरे मैं वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ, डेल टी, दिस इज 2t, दिस इज टाइम,
This is 0. Now this is the current waveform IA. So in this diode D2, this is the transistor TR1. Diode D1. From this one, this is the transistor TR1. Again, this is diode D2. TR1. D1. TR2. So this is the waveform for the forward motoring and braking control. Forward motoring and braking control. So यहाँ पर जो है कि 1 by 1 करके मैं बता रहा हूँ कि कैसे जो है कि कौन सा चॉपर कौन से इंटरवल पे क्या ऑपरेट हो रहा है. ओके. सो फर्स्ट आप लोग ड्रॉ कीजिए सर्किट को सही तरीके से. तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे, सो दिस कॉन्फ़िगरेशन दैट प्रोवाइड द मोटरिंग एंड जनरेटिंग ब्रेकिंग ऑपरेशन in the forward direction. Okay, so now the first transistor TR1, this one TR1 with diode D1, this TR1 and diode D1, this is the circuit of similar circuit of first case, that is the motoring operation. First case, this transistor TR1 and diode D1. Okay, and this I am writing here, transistor TR1, and D1, this form a chopper circuit, and provide control और फॉरवर्ड मोटरिंग. जो मैंने बताया मोटरिंग के लिए वो सेम सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, फॉरवर्ड मोटरिंग के लिए, फॉरवर्ड मोटरिंग ऑपरेशन. और ये ट्रांजिस्टर यदि T2 और D2 को यदि हम लोग लेते हैं, TR2 with D2, provide control or forward रीजेनरेटिंग ब्रेकिंग ऑपरेशन, जो हम लोग अभी लास्ट में पढ़े हैं, रीजेनरेटिंग ब्रेकिंग ऑपरेशन. Means suppose we want to control the motor, for motoring operation, then simply we just control TR1, and when we want to control for the braking operation, then we just control the TR2. Okay, means TR1 to TR2 दोनों को हम लोग कंट्रोल करके मोटरिंग एंड ब्रेकिंग ऑपरेशन कंट्रोल कर सकते हैं. और इसके लिए क्या करना है कि हम लोग को सिंपल ड्यूटी रेशियो, जो हम लोग जो इंटरवल को देख रहे हैं, जो टाइम, जो हम लोग का ड्यूटी रेशियो मीन्स हम लोग का जो टाइम इंटरवल को, बस उसी को यदि हम लोग कंट्रोल करते हैं तो वहीं से हम लोग कंट्रोल करेंगे. जैसे कि सिंपल यदि हम लोग बात कर सकते हैं कि कोई भी टाइम पीरियड T है मेरे पास, ठीक है, तो उस समय TR1 ट्रांजिस्टर में जो है कि कुछ टाइम इंटरवल 0 to del T, given this 0 to del T, and TR2 को जैसे कि हम लोग दे दिए हैं कि डेल्टा 2 to T, ये डेल्टा 2 to ये सिंगल दिस वन TR1, ये ये वाला TR क्या था, ये 2 होगा, ठीक है, TR2. एंड डेल, व्हाट इज डेल हियर, दिस इज जो डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटी रेशियो. तो 0 to del T मोटर इज कनेक्टेड टू सोर्स, आइदर TR1 से कनेक्ट होगा या फिर हम लोग का डायोड D2 से कनेक्ट होगा, दो ही केस बनेगा.
0 टू डेल टी में ये जो इंटरवल है, फ्रॉम, यहाँ पर लिख देते हैं एक लाइन, फ्रॉम 0 टू डेल टी motor is connected, motor is connected to source either through TR1 to D2, depending on whether the motor current I is positive or negative. इस चीज पर डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग on whether the motor current IA is positive or negative. जैसे कि हम लोग बात करते हैं सोर्स वोल्टेज और ईएमएफ, यदि V इज ग्रेटर देन E हो जाता है, यदि वोल्टेज, हम लोग जो सोर्स वोल्टेज है, if V is greater than E, so during this period what will happen, the rate of change of current is always positive. हम लोग मान के चलते हैं since V is greater than E, then what will happen during this period? During this period, the rate of change of current is always positive. The rate of change of current is positive, always positive. स्क्रीनशॉट ले लो इसको। अब यदि वही टाइम इंटरवल, यदि हम लोग ये वाला टाइम इंटरवल के लिए बात करते हैं, ये डेल्टा 2 से लेकर के टी में, so व्हाट विल हैपन हियर, मोटर आर्मेचर यहाँ पर जो होगा कि हम लोग का शॉर्ट कर जाएगा, और उस समय में ये कहा गया D1, ये D1 से TR2, सो यहाँ पर भी हम लोग डिपेंड करेगा कि करंट पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। और इस केस में जो हम लोग, एक मिनट, डेल्टा टी से लेकर के टी, ये चीज है यहाँ पर वोल्टेज 0 है क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट कर जाएगा। जब हम लोग इस इंटरवल का बात करेंगे, इस करंट यहाँ पर हम लोग का शॉर्ट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर TR2 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो पूरा शॉर्ट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से सोर्स से कोई मतलब नहीं रह रहा है, यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर 1 मिनट, 1 मिनट, similarly from delta 2 to T, the motor armature is shorted. Either D1 or TR2. Here also depending on whether IA is positive or negative, and during this period rate of change of current is always positive, sorry, always negative. सो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज, सिमिलरली जो हम लोग का आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज होगा वो यही आएगा, डेल V, और IA का भी जो सेम ही चीज है, इक्वेशन तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर डेल V बाई RA। तो ये जो ऑपरेशन है, ये जो इक्वेशन, ये क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव IA,
इक्वेशन जो है पॉजिटिव आई है, मतलब जो डेल होगा वो ग्रेटर देन होगा। सिंपली ये जो इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं, जो ऊपर का इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, ठीक है, दिस इक्वेशन, द मोटरिंग ऑपरेशन, मोटरिंग मतलब पॉजिटिव आई है, तो लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन, जो लास्ट क्लासेस में हम लोग जनरेटिंग ब्रेकिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग, ये सब जो पढ़े हैं ना, वो सब कॉन्सेप्ट को एक बार मतलब देख लेना है, ठीक है, क्योंकि वही सब का कॉन्सेप्ट ही इधर भी है। That motoring equations, motoring operation, positive कब होगा ये, takes place when E by V, और रीजनरेटिंग के लिए क्या हो जाएगा, रीजनरेटिंग ब्रेकिंग, एंड जस्ट वेट, when del is greater than E by V, एंड रीजनरेटिंग ब्रेकिंग के लिए हो जाएगा, रीजनरेटिंग ब्रेकिंग टेक्स प्लेस, हाँ जस्ट लेस देन हो जाएगा, ठीक है। सो ओके, एक्चुअली हम लोग का हो क्या रहा है, हम लोगों ने सिंपली फर्स्ट केस में देखा कि मोटरिंग के लिए कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरे केस में क्या देखा कि एक जनरेटिंग के लिए कॉन्फ़िगरेशन, बात को समझना, ठीक है। और हम लोग तीसरे केस में क्या कर रहे हैं कि वही दो कॉन्फ़िगरेशंस को इस वे में कनेक्शन को करेंगे, हम लोग इस वे में कनेक्शन को करेंगे कि दोनों ऑपरेशन को हम लोग एक ही सर्किट से अचीव करेंगे, फॉरवर्ड मोटरिंग एंड फॉरवर्ड जनरेटिंग ऑपरेशन। और उसके लिए क्या है कि किस मोड में हम लोग, जिस मोड में चलाना है, उस मोड में कौन ट्रांजिस्टर हम लोग का हो रहा है, और उसके आउटपुट में हम लोग को जो वोल्टेज मिल रहा है, और फिर दूसरे केस में हम लोग कौन ट्रांजिस्टर कर रहे हैं तो उसमें वोल्टेज शॉर्ट हो रहा है। तो बस इस वे में हम लोग को समझना है कि जो करंट जो हम लोग का डायरेक्शन होगा, लोड टू सोर्स, सोर्स टू लोड, और उस केस के लिए हम लोग का जो डेल जो बात करें, जो ड्यूटी रेशियो का बात करेंगे, वो कब ग्रेटर देन ई बाई भी हो रहा है और कब ग्रेटर देन लेस देन ई बाई भी हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो करंट का डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है, वो डिसाइड करेगा कि ब्रेकिंग हो रहा है कि जनरेटिंग हो रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें भी वही है कि हम लोग जो मोटरिंग और जनरेटिंग का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बस यहाँ पर क्या है कि हम लोगों के पास में एक सर्किट है जो कि चॉपर सर्किट है, और चॉपर सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन जो है जिस वे में डिफाइन किया गया है, उस वे में हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे इसका ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम लोग बात करेंगे, जैसे हम लोग पढ़े ना अभी मोटरिंग और जनरेटिंग ब्रेकिंग, अब वो तो जैसे हम डायनेमिक ब्रेकिंग भी पढ़े हैं, डायनेमिक ब्रेकिंग भी पढ़े हैं, यदि याद आ रहा होगा डायनेमिक ब्रेकिंग क्या होता है, तो डायनेमिक ब्रेकिंग भी हम लोग पढ़ चुके हैं, डायनेमिक ब्रेकिंग। तो ठीक है, डायनेमिक ब्रेकिंग को भी मैं बताऊंगा। तो इससे पहले अभी जो हम लोगों ने जो समझा अभी मोटरिंग और जनरेटिंग के केस के लिए, ठीक है, तो ये मोटरिंग और जनरेटिंग के लिए, मतलब जो मोटरिंग और जनरेटिंग मतलब ब्रेकिंग के लिए, एक सिंपल सा अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उस न्यूमेरिकल जो इसी बेसिस पे हम लोग का इसी कॉन्सेप्ट पे ही रहेगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक हम लोग न्यूमेरिकल को समझते हैं। अभी न्यूमेरिकल बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है, सबको ये ट्राई कीजिए बनाने के लिए। तो मैं जो है कि न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा इसको लिख करके बनाइए, अभी इजी न्यूमेरिकल है। तो ऑल ऑफ यू जस्ट राइट दिस क्वेश्चन, a 230 volt, write down, 960 rpm and 200 ampere separately excited DC motor has an armature resistance
of 0.02 ohm the motor is fed from a chopper which provide both motoring and braking operation. The source has a voltage. The source has a voltage of 230 volt, assuming continuous conduction. अब इसमें जो पहला नंबर कैलकुलेट ड्यूटी रेशियो ऑफ चॉपर फॉर मोटरिंग ऑपरेशन at rated torque and 350 आरपीएम। दूसरा नंबर सबको लिखो, कैलकुलेट ड्यूटी रेशियो ऑफ चॉपर फॉर ब्रेकिंग ऑपरेशन वही है, खाली इसमें ब्रेकिंग कर दिए हैं। रेटेड टॉर्क एंड 350 आरपीएम। थर्ड नंबर, if maximum duty ratio of chopper is limited to 0.95 and maximum permissible motor current is twice the rated. Calculate maximum permissible motor speed। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा होगा लेकिन ऐसा ज्यादा बड़ा नहीं है। मोटर स्पीड ऑब्टेनेबल विदाउट फील्ड वीकनिंग and power fed to the source or fed to the source। फोर्थ,
if motor field is also controlled in third, जीके दुबे का बुक होगा तुम लोग के पास? जीके दुबे का बुक सही है। फील्ड करंट as a fraction of its rated value for a speed of 1200 RPM। क्वेश्चन को तो पहले 2 बार पढ़ना होगा, 1 by 1। क्वेश्चंस को पहले 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप मैंने देखो, मैंने इससे पहले भी बहुत सारे तुम लोग को फेज कंट्रोल रेक्टिफायर सब के लिए क्वेश्चंस कराया था, ठीक है। सो 1 by 1 करके तो पहले समझना होगा क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद ही इसको बनेगा, ठीक है। तो देखो ट्राई करो बनाने के लिए, 5-10 मिनट समय देते हैं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है अभी, ठीक है, और फिर से ज्वाइन भी करना है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझो कि 230 वोल्ट 960 आरपीएम एंड 200 एम्पियर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.02 ओम। द मोटर इज फेड फ्रॉम चॉपर बाद यहाँ पर चॉपर वर्ड आ गया, which provide the both motoring and braking operation. The source has a voltage up to 30 volt. Assuming continuous conduction. First case calculate the duty ratio of the chopper for motoring operation, rated torque. तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड ये सब बहुत इजी है, ठीक है। 10 मिनट्स काफी, यदि समझ चुके हो तो सारा जो लास्ट में हम लोग जो फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में जो पढ़ते थे ना, सेम टू सेम यहाँ पर भी है, वही सेम करना है, इजिकल टू V माइनस आई आर करना है, और N2 by E2 by 1 N2 by N1 का जो रिलेशन हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला जो V इजिकल D प्लस आई आर जानते हैं, ड्यूटी रेशियो का फॉर्मूला जो जानते हैं, बस ये फॉर्मूला को लगाने से ही सारे चीज बन जाएगी, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो अपने से खुद से, और ठीक है ज्वाइन करो फिर से 2 मिनट। तो किसी से बना है जो मैंने न्यूमेरिकल दिया है 230 वोल्ट, ये जो कॉन्फ़िगरेशन का सिंपल ड्यूटी रेशियो का कैलकुलेट करना है, तो यदि हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन में है कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चंस को देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिए तो देखो बताते हैं। जैसे रेटेड ऑपरेशन के लिए, जैसे हम लोग सिमिलरली हर केस में निकालते थे, जैसे रेक्टिफायर कंट्रोल में भी करते थे, सबसे पहले जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ, जो हम लोग जो रेटिंग दिया हुआ है, सो एट रेटेड ऑपरेशन पे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि हम लोग का जो बैक ईएमएफ क्या है। सो E इजिकल टू फॉर्मूला पता है, V माइनस आई आर होता है, तो यहाँ पर V माइनस आई आर दैट इज 230 और माइनस क्या है 200 एम्पियर, आई आर कितना है 0.02, सो 200 इंटू 0.02, इसको सॉल्व करने पर आता है 226 वोल्ट। कुछ नहीं, जैसे हम लोग पहले बनाते थे वैसे ही बनाना है, कुछ है नहीं, ठीक है। अब क्या है 350 आरपीएम और टोटल हम लोग का 960 आरपीएम, तो इसे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं ना, फॉर्मूला पढ़े हो ना, E2 by E1 V2 by V1 में E2 by E1 N2 by N1, सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी लगा देना है। सो यदि हम लोग E निकालना है किसके लिए, 350 के लिए, है ना, तो 350 N2 by N1, तो N2 कितना है 350, N1 कितना है 960, और यहाँ पर E 960 के लिए कितना, ये 226 निकाल रेटेड के लिए, तो सब सिमिलर ही है जैसे हम लोग पहले पढ़े थे, वही से उसी में भी निकालना है यहाँ, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने पर कितना आया है तो बताओ, इसको कैलकुलेट करने पर कितना आया है तो बता सकते हो अभिजीत? इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा देखो, 82.4 82.4 वोल्ट, ओके। अब हम लोग को क्या चाहिए, VA, तो VA मतलब मोटर टर्मिनल वोल्टेज, ये कितना आया है, VA इजिकल टू कितना आया है बताओ, आइए आ रहे फॉर्मूला है, ये 82.4 हो गया प्लस 200 इंटू 0.02 है, इसको सॉल्व किया जाए तो आता है इसमें 86.2
4 वोल्ट, ये आगे भी है। अब हम लोग फाइंड आउट करना है फर्स्ट केस के लिए क्या है, ड्यूटी रेशियो है, ड्यूटी रेशियो। फर्स्ट केस वाला निकाल रहे हैं ड्यूटी रेशियो, तो डेल इजिकल टू बताओ क्या है, फॉर्मूला तो बताया ना, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला था ना, वी ए इजिकल टू डेल वी, यही तो निकालना है क्या। तो वी ए बाय वी, तो वी ए कितना आ गया 86.4, और भी कितना है 230, है कि नहीं, बहुत सिंपल, 0.376, ये आ गया 10। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, एनी डाउट, ज्योति कुमारी कोई डाउट है, हाँ ज्योति कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। ये सेकंड केस को निकालो ज्योति, बताओ तो क्या आंसर आ रहा है डेल सेकंड केस के लिए, सेकंड केस बताओ। ओके, और उसके बाद थर्ड केस को देखो क्या कह रहा है कि मैक्सिमम ड्यूटी रेशियो ऑफ चॉपर इज लिमिटेड टू 0.95, 0.95, ठीक है, मतलब ड्यूटी रेशियो दे दिया है 0.9, मैक्सिमम परमिसिबल मोटर करंट इज ट्वाइस, करंट को कर दिया ट्वाइस, ठीक है, करंट ट्वाइस, कैलकुलेट मैक्सिमम मोटर स्पीड। तो ये सेकंड निकालो, टू टू के केस के लिए क्या हो जाएगा, तो टू के केस में तो क्या कह रहा है, ब्रेकिंग ऑपरेशन रेटेड ब्रेकिंग ऑपरेशन, और कुछ तो नहीं है यहाँ पर, तो ब्रेकिंग मतलब कहाँ गया मेरा पॉइंटर, तो ब्रेकिंग के लिए क्या आ जाएगा, V इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग का क्या था, ई माइनस ई प्लस आई आर था ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई माइनस आई आर हो जाएगा, और क्या, यही तो होगा, माइनस कर देना है बस सिंपल, ठीक है। तो 82.4 और माइनस 200 इंटू 0.02, दैट इज 78.4 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से डेल निकाल लेना है, तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए मीन 78.4 एंड डिवाइडेड बाय 230, सो दैट इज इक्वल टू 0.34, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आते हैं हम लोग, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो यदि है तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मैक्सिमम ड्यूटी रेशियो ऑफ चॉपर इज लिमिटेड टू 0.95, मतलब दे दिया है यहाँ पर, जैसे हम फॉर्मूला जानते हैं वी ए इज इक्वल टू डेल वी, तो ये जो डेल है ये दे चुका है 0.95, कितना दिया हुआ है 0.95, एंड वी तो पता ही है 230, तो ये कितना निकल जाएगा 0.95 230, 218.5 वोल्ट, तो भी यहाँ निकल गया, ठीक है। कहा क्या रहा इसमें कि मोटर ट्वाइस करंट इज ट्वाइस, करंट को ट्वाइस कर देंगे, तो फॉर्मूला हम लोग के पास क्या है मोटर, तो ई इज इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए, सो भी हम लोग को तो आई गया 218.5 प्लस आई कितना हो गया 200 इंटू टू एंड आर ए 0.02, समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन में जो कह रहा है बस वही किया, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है करंट इज ट्वाइस द रेटेड, करंट इज ट्वाइस द रेटेड, then calculate the maximum permissible motor speed obtainable without field weakening and power fed to the source, ठीक है। सो सिंपल वे में हम लोग निकाल सकते हैं स्पीड को, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोग के पास पता है E2/E1 वाला, E2/E1 N2/N1, तो यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड निकालने के लिए कहा जा रहा है, कितना आया है मैक्सिमम, ये स्पीड कितना आया परमिसिबल स्पीड, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, सो E2/E1 तो 226.5 बाय हम लोग का जो आया है एक्चुअल में E2/E1 तो कितना था उधर, ये कितना आया था रेटेड ऑपरेशन में, कितना आया था, ये देखो 226 यहाँ पर देखो 226, और रेटेड स्पीड कितना है 960, तो इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है,
तो सॉल्व करके देखो, 962 आरपीएम आ रहा है। देखो यहाँ पर किसी को डाउट है तो देखो क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखोगे, कहीं पर कुछ डाउट लग रहा है क्या, क्वेश्चन पे देखो कहीं पर कुछ डाउट है तो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखो यहां तक कुछ भी डाउट लग रहा है तो ठीक है। लास्ट क्वेश्चन भी क्या और क्या है निकालना है इसमें, और क्या निकालने का रहा है, मैक्सिमम परमिसिबल मोटर करंट वाइज, ठीक है ठीक है। मोटर फील्ड also control calculate field current as a fraction of its rated value for a speed of 1200 rpm। फाइंड आउट करो, कोशिश करो, बहुत इजी है। ई हम लोग का निकाल चुका है यहाँ पर 226.5, ठीक है। और रेटेड फील्ड करंट 960 आरपीएम है, ठीक है ना। और लीनियर मैग्नेटिक सर्किट में हम लोग का जो ईएमएफ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड करंट का होता है। ट्राई करो एक बार बनाने के लिए, 1200 आरपीएम के लिए निकालना है तो कुछ नहीं है, रेटेड है और 1200 आरपीएम डिवाइड कर लेंगे आ जाएगा। फील्ड करंट क्या कहा है क्वेश्चन में, फील्ड करंट, तो कुछ नहीं, 960/1200 करेंगे फील्ड करंट के लिए। 960/1200 0.8 आंसर है इसका लास्ट में। जो फील्ड करंट निकालेंगे ना वो सिंपल 960/1200 दैट इज 0.8, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं सिंपली लीनियर मैग्नेटिक सर्किट, एज्यूमिंग लीनियर मैग्नेटिक सर्किट, उस केस के लिए 960/1200 0.8 एम्पियर, ठीक है। तो देखो यहां तक जो है कि चॉपर का जो ऑपरेशन मैंने बता दिया। तो बोलो 1200 क्या है? 1200 आरपीएम, क्वेश्चन को देखो लास्ट में, if motor field is also connected to calculate field current as a fraction of its rated value for a speed of 1200 rpm। क्वेश्चन को देखो, लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो, है लिखा हुआ था, लास्ट वाला क्वेश्चन को देखो 4 नंबर में, ठीक है। ये निकालना है 0.8 आएगा फ्रैक्शन, यही कह रहा है निकालने के लिए। 1 2 3 एंड 4 ये सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं, मोटर जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन, टर्मिनल वोल्टेज इक्वेशन और VA इज इक्वल टू डेल V, बस इतना ही है इसमें, और कुछ भी इसमें ज्यादा टफ है। तो ठीक है, यहां तक तुम लोग जो है कि इसको रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है। वीडियो को अपलोड कर देंगे यूट्यूब में, वहां से कुछ डाउट होगा तो देख लेना। तो ठीक है, रखते हैं यहीं तक, ओके ओके, बाय ऑल ऑफ यू।